small finance bank. We have learned up to this microfinance, correct? हमने बहुत सारे microfinance के different different tools देखे, instruments देखे, forms देखे, correct? So here the next step level is a small finance bank. तो but obvious है कि दिमाग में question आएगा कि already microfinance is there. Then what is small then again? Why the small bank finance came? So today we will talk about this, ki why small finance banks came in existence. Okay. Here for this particular chapter, we are going to cover these all topics majorly. What is a small finance bank? What is the particular financing and all? Then self-help group. Here we are going to see in detail what is a self-help group, how it started, who, what is objective, and all these things in details. Okay. Then we are going to see the next level of it, what development of a rating instrument for a self-help group to the bank, that we are going to see that how the self-help group can be converted. तो फर्स्ट आई विल जस्ट टेल यू कि ये स्मॉल बैंक फाइनेंस जो है ये क्या चीज़ है. ये भी एक बैंक ही है. ओके ये भी एक स्मॉल बैंक है. हियर दे वांटेड टू प्रमोट ऑल द पीपल. ओके यहाँ पे हर एक लेवल पे वो जाना चाहते हैं. जैसे कि फार्मर तो पहले से ही हमने देखा फ्रॉम द डे वन ऑफ माई क्लास आई एम टेलिंग कि फार्मर इज अ मेजर फोकस ऑफ ऑल द बैंकिंग सेक्टर. करेक्ट. तो ये जो स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस है इनका भी यहाँ पे फोकस है. एंड जैसे कि इंडिया में आफ्टर 1991 पॉलिसी फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बहुत जोर दिया गया है बिकॉज फाइनेंशियल इंक्लूजन विल मेक अवर इकोनॉमी मोर स्ट्रॉन्गर. करेक्ट. ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये एक नेक्स्ट स्टेप लेवल है, एक्स्ट्रा स्टेप टेकन बाय द आरबीआई टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन ऑल एरियाज ऑफ आवर कंट्री. तो स्पेसिफिकली अभी जो मार्केट में जो आप देख रहे हो सिलेक्टेड जो 10 आरबीआई ने बीच में जो सिलेक्ट किए थे स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो उनके यहाँ पे मैंने लिस्ट रखी हुई है कि दीज ऑल आर द करंटली एग्जिस्टिंग 10 small finance bank. So here you can see the first one is AU Financiers Limited Jaipur se, then Capital Local Area Bank Limited from Jalandhar. So this is the first bank. This is the first bank actually which is established in Punjab, and this is the India's first small finance bank which is open in India. Then afterward all have started, but this is the first who started working. Then Disha Microfinance Private Limited, then Equitas Holding Private Limited, Chennai, then ESAF Microfinance and Investment Private Limited from Chennai, then Janal Lakshmi Finance Service Private Limited, Bangalore. You can see many of them are from Chennai and Bangalore. Then one more is then Ujjivan Finance Service Private Limited. It is again from Bangalore. Then RGBN Northeast Microfinance Limited from Guwahati. Then Suryodaya Microfinance Private Limited from Navi Mumbai, and Utkarsha Microfinance Private Limited from Varanasi. So you can see all are private limited, all are related to private limited companies. So here if you see whatever the microfinance term we have seen, in that we have seen it is a group of people, it is focusing on particular task or particular people or particular kind of a business, correct? But here these all are private limited, means here the government RBI is promoting private player to come in this particular finance sector. Okay, so now we will see in detail how these people came in this sector, what is the main objective, why they are now existing into the market. Okay. So first, I'd like to tell you that small finance banks are also known as niche banks or differentiated banks also. Even the payment banks, last sessions I have also talked about payment banks. So we are going to talk that also after this particular topic. That also fall under the category of niche bank. Niche bank means what? What is the meaning here? It is a specific kind of a bank with some objective or with a specific operation limitations that banks are working. That type of a banks are called as a niche banks. Okay, they are having specific objective for that. And the main objective of, as I told you, that a small finance bank and all this niche or differential banks, everybody's objective is same,
to reach to every level of people to provide financial services. That financial services may be saving or it may be lending. Okay, this is the main objective of giving and permission to this all private player to come into this financial sector of India. Then what is the main objective? We'll see now the one by one objectives of a small finance banks. So first, very foremost, RBI's objective is what? To give a one more step ahead for financial inclusion. Financial inclusion means what? Anybody can tell me what you mean by financial inclusion? Can you unmute and tell me what is financial inclusion as per your understanding? We have discussed many times in a class. कई बार बात हुई है हमारी क्लास में, तो कोई बता सकता है अनम्यूट करके कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? Nobody is talking a single word. Why? प्रहलाद, गणेश, राजेश कुमार, पूजा, नीलम, अक्षता, प्रसाद. Today I think Suraj is absent. Anybody like to tell me फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में. क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन? I think nobody wanted to tell me. Okay. See, the financial inclusion, as I told you from the day one, financial inclusion means what? Giving a services to all the people all over the India. It is a financial inclusion. So here it is a future financial inclusion means what? They wanted to give a one more ahead step, because what happened in microfinance concept, even in banking concept, nationalized and private banking sector, they are not allowed to go at that level. Okay, they don't have that particular kind of a cost benefit type of study. After conducting, they found that they are not able to reach some level of people, so that's why they come up with this. So this is one step ahead. Financial inclusion means what? Providing a banking services to all, making all, each and every person who is earning a single rupee, he should be a bankable. Means he should have a bank account, he should be able to save, he should be able to take a loan. Okay, so this is a financial inclusion. So this is a future one step they are taking, one further step they have taken. And a second objective of this particular small finance bank, RBI, is what? Supply of a credit to all the people. Okay, but to all, to whom specific they have given, means जब इनको लाइसेंस दिया गया तो इनको ये बताया गया है प्रॉपर कि आपको इन लोगों को लोन देने हैं. Okay, they have given this particular instructions to them. The first one is what? Small business unit. Small business unit means what? सबसे छोटे छोटे जो बिजनेस हाउसेस है उन सबको लोन देने का काम है. जैसे कि यू कैन सी अ स्मॉल ठेले वाला जो है, जो फ्रूट सेल करता है, पानी पूरी बेचता है, या फिर छोटे बड़े जो लक्ष्मी रोड पे जो बैठने वाले बिजनेसमैन है, दे ऑल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अ स्मॉल बिजनेस यूनिट्स. ओके, दे आर वेरी स्मॉल, सोल प्रोप्राइटर काइंड ऑफ अ बिजनेस. देन सेकेंड लेवल पे उन्होंने दिया हुआ है उनको कि दे शुड गिव अ लोन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. तो यहाँ पे बहुत समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से कि व्हाट इज अ स्मॉल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एंड मार्जिनल ना. यहाँ पे एज पर द एग्रीकल्चर मार्जिनल फार्मर कौन होते हैं? ऐसे फार्मर जिनकी लैंड जो है अप टू 1 हेक्टर है एंड दे आर डूइंग अ फार्मिंग ऑन इट. ओके, तो दीज फार्मर्स आर कंसिडर्ड मार्जिनल. ओके, बहुत ही छोटे, जिनका जो फार्मिंग लैंड है वो 1 हेक्टर तक है. अगर मैं एकड़ से गिनूं, 1 एकड़ तक गिनूं तो एज पर एकड़ इट इज 2.5 एकर्स. ओके, एंड दूसरा है कि स्मॉल फार्मर्स. स्मॉल फार्मर्स क्या है? मार्जिनल से थोड़ा बड़ा है, मार्जिनल से थोड़ा बड़ा है. ओके, मार्जिनल में हो सकता है जो फार्मर है वो 1 एकड़ ही जमीन रखता है या फिर उससे भी कम. ओके, 1 बीघा एंड ऑल दैट काइंड ऑफ. ओके, तो उससे भी छोटे वाले जो है वो सारे स्मॉल फार्मिंग में आएंगे.
ओके क्योंकि आज की डेट में मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स आर मोर देन द बिगर फार्मर्स। ओके, तो उनको सर्विस प्रोवाइड करने का काम इनके पास है। देन स्मॉल फार्मर क्या है, एक स्टेप अहेड ऑफ मार्जिनल, जिनकी लैंड मोर देन 1 हेक्टर है बट लेस देन 2 हेक्टर है। ओके, लेस देन 2 हेक्टर। 2 हेक्टर मीन्स व्हाट, अराउंड 5 एकर्स के अराउंड उसकी लैंड उससे कम है, या फिर अप टू 5 एकड़ है, वो सारे स्मॉल फार्मर्स कहलाएंगे। उसके अबाव हो गए वो स्मॉल फार्मर्स नहीं कहलाएंगे। ओके, वो दे विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल फार्मर्स। ओके, तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है, जिसमें ये जब लोन देंगे तो दे विल फाइंडिंग दिस पर्टिकुलर फैक्ट एंड फैक्ट्स थ्रू देयर पर्टिकुलर लैंड डॉक्यूमेंट्स। ओके, दूसरा एक है माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, एसएमई जो सेक्टर है उसके लिए। तो अभी एसएमई मीन्स व्हाट, वो हम देखेंगे। इसमें क्या है कि माइक्रो इंडस्ट्रीज जो है वो क्या कहती है कि माइक्रो इंडस्ट्रीज में भी दो तरह की माइक्रो इंडस्ट्रीज है, एक है मैन्युफैक्चरिंग, एक है सर्विस कंपनीज। करेक्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिनका 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट है, ऐसे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो सारे माइक्रो कहलाएंगे। और सर्विस कंपनी जो है उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख तक है, वो सारे माइक्रो कहलाएंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग वालों को जो है 25 लाख का पर्टिकुलर ब्रैकेट दिया हुआ है, और सर्विस कंपनी को जो है वो 10 लाख का दिया हुआ है। ये डिफरेंस क्यों है? तो यहाँ पे ये कंसिडर किया गया है कि जो माइक्रो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग है उनका ज्यादातर का जो ब्लॉक मनी जो ब्लॉक होगा, कैपिटल जो ब्लॉक होगा वो मशीनरीज में होगा, लैंड एंड बिल्डिंग में होगा। करेक्ट, या फिर उनके जो भी फर्नीचर्स रिक्वायरमेंट्स है उसमें होगा। तो ये ब्लॉक्ड मनी होगा, दैट्स व्हाई दे हैव गिवन अ अपर लिमिट टू 25 लाख एज अ फॉर अ माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग। ओके, देन सर्विस इंडस्ट्री जो है उनका जो ब्रैकेट दिया गया है वो 10 लाख दिया। क्यों? क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्रीज को देखा गया है कि उनका जो पर्टिकुलर ब्लॉकेज ऑफ मनी है वो ज्यादा करके वर्किंग कैपिटल में फंसता है, ना कि फिक्स एसेट्स में। ओके, जबकि मैन्युफैक्चरिंग वालों का क्या है, ज्यादा करके ब्लॉकेज किस में होता है, फिक्स एसेट्स में होता है। तो दैट इज द रीजन कि सर्विस कंपनीज को जो हायर ब्रैकेट दिया गया है वो 10 लाख तक का दिया गया है। ओके, so this is a micro industries definition as per the law. Then small industries कौन सी कहलाती है? स्मॉल इंडस्ट्रीज, इसमें भी अगेन दो ब्रैकेट है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड द सर्विस इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का उन्होंने बोला हुआ है मोर देन, माइक्रो से एक स्टेप अहेड, मोर देन 25 लाख। अगर 26 लाख भी है तो वो किस में आ जाएंगी, स्मॉल में आ जाएगी। ओके, 25 लाख ऑनवर्ड्स टू 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट मीन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस की, फिक्स एसेट्स या फिर टोटल जो इन्वेस्टमेंट है टोटल बिजनेस की वो 5 करोड़ तक है। ओके, वो इन्वेस्टमेंट में भी बोरोड हो सकता है, मे बी इक्विटी फंड होगा। ओके, या फिर उनका ओनर्स प्रमोटर्स फंड होगा, उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे सिर्फ लेना देना क्या है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है इस बिजनेस का। ओके, टोटल असेट्स जो आती है वो कितनी है, करंट असेट्स वगैरह सब पकड़ के। ओके, तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग का लिमिट है वो 5 करोड़ तो बढ़ गया। ठीक है, उसके अबाउ जो हो गए वो बिग ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो होगे। सेम में फॉर द सर्विस कंपनी जो है ब्रैकेट दिया गया अबाउ 10 लाख, जो माइक्रो से अबाउ वाले हो गए, मीन्स 10.5 भी लाख आ गया तो वो कहाँ गए, स्मॉल इंडस्ट्रीज में फॉलो हो जाएंगे। ठीक है, और इसका लिमिट दिया गया है 2 करोड़ तक, मीन्स 2 करोड़ तक उनकी इन्वेस्टमेंट होगी सर्विस कंपनी की, तो वो क्या कहलाएगी, स्मॉल इंडस्ट्री कहलाएगी। ओके, देन इसके अलावा जो फोर्थ है जो ऑब्जेक्टिव जिसको सर्विसेज देना है वो है अदर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंटिटी। ओके, अदर और अनऑर्गेनाइज मीन्स व्हाट, जिनको ऑर्गेनाइज नहीं है प्रॉपरली, उनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए नहीं गए, वो हर वक्त बदलते रहते हैं या फिर चेंज करते रहते हैं। ऐसे लोग मीन्स व्हाट, सारे वेज अर्नर, जितने भी लोग डेली वेजर का काम करते हैं या फिर स्लेव्स का काम करते हैं, उनके लिए ये पर्टिकुलर सेक्टर में लोन देने का काम स्मॉल फाइनेंस बैंक करेगी।
तो यहाँ पे क्या क्या फॉल करेगा, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, या फिर फिशरमैन्स है, या फिर वीवर्स जो है, मीन्स जो हाथ माग का काम करते हैं, ऐसे जो भी लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन सबको लोन देना और उनका सेविंग रखने का काम स्मॉल फाइनेंस बैंक करेगी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट ऑन द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आरबीआई हैव फाउंड इन तक पहुंचने के लिए other banks and even microfinance have a limit, correct? but ये जो small finance bank है उनके लिमिट थोड़े अपर रखे हैं as compared to micro finance. Okay, now the scope of activity means what kind of activity they are conducting. small finance bank जो है वो क्या क्या तरह के एक्टिविटीज करता है। तो पहला है कि सारी बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी वो प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला बेसिक फैसिलिटी क्या है, टू sorry to accept डिपॉजिट, करेक्ट, टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट। तो एक्सेप्ट द डिपॉजिट में क्या आ गया, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ वर्किंग विद द बैंक्स, कासा मैनेजमेंट मींस कासा जो है वो इसमें फॉलो होता है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ये पर्टिकुलर स्मॉल बैंक जो है उसके अंदर दोनों तरह के अकाउंट खोले जा सकते हैं। ओके, दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट्स भी ये रख सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट रख सकते हैं। ओके, एंड लेंडिंग टू दीज पीपल, ओके, लेंडिंग टू दीज पीपल, इन सबसे यही लोग सेव करेंगे। ओके, ये लोग जो है ये सेव करेंगे और लेंड टू दीज ऑल। ओके, आई हैव वेंट टू अनदर स्लाइड फॉर दैट कि आई विल जस्ट adjust the picture, I will send it to back so you can see. Yeah, lend to whom, that unreserved and unreserved section means जो भी रिजर्व नहीं है या फिर अंडर रिजर्व रखा गया है, ऐसे सेक्शन को स्मॉल बिजनेस यूनिट को जो है लोन देना। जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी आई हैव केप्ट अ स्पेसिफिकली पिक्चर फॉर दैट कि जैसे फ्रूट सेलर है आपके कॉर्नर में जो काम करने वाला, या फिर कोई टेलर होता है जो छोटा सा टेलरिंग का शॉप चलाता है, ऐसे जो स्मॉल बिजनेसेस है जो अनरिजर्व है या फिर अंडर रिजर्व रखे गए हैं, उनके लिए लोन देने का काम स्मॉल फाइनेंस करेगा। ओके, देन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि कौन है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। देन माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की। देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज मीन्स व्हाट, अभी जस्ट मैंने बोला आप लोगों को, जैसे कि रिक्शा वाला हो गया, आपके कंस्ट्रक्शन लेबर हो गए, इवन फिशरमैन्स हो गए। ओके, ये सारे कहाँ गए, ऑन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर फॉल होते हैं। इसमें इस बैंक के लिए देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शंस इन एरिया ऑफ ऑपरेशंस फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक, दे कैन ऑपरेट एनीवेयर, वो भले चेन्नई का हो, मुंबई का हो, वाराणसी का हो, गुवाहाटी का हो, तो ऐसा नहीं कि उनके लिए रिस्ट्रिक्शन रहेगा एरिया का ऑपरेशन का, दे कैन ऑपरेट ऑल ओवर द इंडिया। ओके, ये एक इनके लिए बहुत बड़ा डोर ओपन रखा गया है कि ताकि भले 10 ही बैंकों को आरबीआई ने सैंक्शन दिया होगा, बट ऑल ओवर इंडिया ये हमारी उनकी खुद की ब्रांचेस ओपन करके फैल सकते हैं। जैसे उज्जीवन की जो बैंक है उसके ब्रांचेस पुणे में भी है, करेक्ट, जबकि ये उज्जीवन बैंक बिलोंग करती है बेंगलुरु को, करेक्ट। तो ये इस तरह का उन्होंने दिया हुआ है ओपन ब्रैकेट फॉर देम टू रीच टू ऑल द poor people in a society who all are working in a unorganized or they are running a small business. Okay, or it may be a small or micro or small industry. Okay, even to for the farmers in a village area. Then इस particular small फाइनेंस बैंक जब ओपन करना है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बन सकता है इसका ओनर, करेक्ट, ये समझना बहुत जरूरी है। तो पहला तो है रेसिडेंट इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स विद 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, मींस ऐसा कोई भी बंदा जो प्रोफेशनली 10 साल का एक्सपीरियंस है उसको बैंक का और फाइनेंसिंग का, बट वो इंडिया का होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर इनकम टैक्स। आई होप यू माइट बी नोइंग अबाउट इट, रेसिडेंस ऑफ इंडिया होना बहुत जरूरी है, रेसिडेंस के क्योंकि नॉर्म से हमारे इंडिया में एज पर इनकम टैक्स। तो जो भी पर्सन इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर ऐसा स्मॉल बैंक ओपन करना चाहता है फाइनेंस बैंक, वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए और उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, बैंकिंग के अंदर। एंड और कौन अप्लाई कर सकता है,
या फिर ऐसा जो कंपनीज एंड सोसाइटीज ओन्ड है एंड कंट्रोल बाय द रेसिडेंट विल बी एलिजिबल टू सेट अप अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। मीन्स ऐसी कोई भी कंपनी या फिर सोसाइटी जो ओन्ड है एंड कंट्रोल की जाती है एक इंडियन इंसान के थ्रू, ये पर्सन भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई कर सकता है। ओके, तो मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके लिए आरबीआई इज गिविंग मोर प्रेफरेंस टू इंडियन पीपल। ओके, यहाँ पे जो पर्सन इज हैविंग अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ स्टेटस, वही लोग यहाँ पे ये पर्टिकुलर बिजनेस में उतर सकते हैं। दूसरा और कौन आ सकता है इसमें, इस सेक्टर में, इनके अलावा एग्जिस्टिंग जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है या फिर जो भी हमारी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, सॉरी इंस्टीट्यूशंस का स्पेलिंग गलत हो गया है, इंस्टीट्यूशंस है वो, या फिर लोकल एरिया बैंक्स जो है वो, जो कंट्रोल की जाती है एक इंडियन के थ्रू, वो तीनों इस पर्टिकुलर स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, तो कौन आ गया, एनबीएफसी आ गया, माइक्रो फाइनेंस आ गया और लोकल एरिया बैंक्स भी आ गया। तो माइक्रो फाइनेंस अभी ऑलरेडी डिस्कस, तो माइक्रो फाइनेंस का एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन क्या है, उनका लोनेबल अमाउंट जो है ना मैक्सिमम इज 50,000, उसके ऊपर वो लोन नहीं दे सकते। उनको लोन देना होगा तो उनको बैंक, प्राइवेट बैंक या फिर नेशनल बैंक से लोन लेके फिर लोन देना पड़ेगा। ओके, बट इनके लिए वो सैंक्शनेबल लोन नहीं होगा। ओके, लोकल एरिया बैंक्स क्या होते हैं, ये लोकल एरिया बैंक जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही काम कर सकते हैं, उसके बाहर वो काम नहीं कर सकते। ऐसे जो लोकल एरिया बैंक्स है उनको ये पर्टिकुलर परमिशन दिया जा सकता है अगर वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अगर इसको ओन्ड करता है या फिर कंट्रोल करता है। ओके, दोनों। देन दूसरा एक है, ये तो होगा, हमने देखा, देखो पहला क्या देखा, एक प्रोफेशनल देखा या कंपनी देखी, फिर हमने एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस और लोकल एरिया वालों को प्रमोट किया आरबीआई ने। फिर थर्डली आरबीआई ने ये डोर और ओपन कर दिया, प्रमोटर या फिर प्रमोटर का ग्रुप है जिनका अच्छा खासा रिकॉर्ड है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जिनको बिजनेस रन करना आता है बहुत अच्छे से और उनका रिकॉर्ड 5 साल से बहुत अच्छा रहा है उनके प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर, उनके लिए ये डोर ओपन कर दिया गया। ओके, तो पहले तो हमने देखा बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर सोसाइटी या फिर जो कंपनी वो रन होनी चाहिए, करेक्ट, 10 साल से। और एक दूसरा ब्रैकेट हमने देखा एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस और लोकल बैंक, उनके लिए ओपन किया गया, बट उसके लिए कंडीशन यही है कि वो ओनर और चलाने वाला इंडियन होना चाहिए। दूसरा जो थर्ड ओपन किया गया दरवाजा वो है प्रमोटर्स के लिए, बट ये प्रमोटर कैसे होने चाहिए, उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए साथ में ही, और या फिर उनको बिजनेस रन करने का जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। तो ये एलिजिबिलिटी है टू बिकम अ प्रमोटर ऑफ और अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। नाउ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, की कैपिटल कितना होना चाहिए, अगर कोई स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक ओपन करते हो तो कितना होना चाहिए। तो पहला तो आरबीआई ने बोला है कि मिनिमम कैपिटल, पेड अप कैपिटल जो होगा वो 100 करोड़ का होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर नोइंग अबाउट इट, देयर आर द टू टाइप ऑफ, आई होप यू ऑल आर नोइंग अबाउट इट, क्योंकि आप सब फाइनेंस से ही हो। दो तरह की कैपिटल होते हैं, एक होता है ऑथोराइज कैपिटल और एक होता है पेड अप कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल जो है ना वो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है जब हमारी कंपनी एस्टेब्लिश की जाती है, रजिस्टर की जाती है तब। ओके, ऑथोराइज कैपिटल, तो उस ऑथोराइज कैपिटल हो सकता है मैं 500 करोड़ लिख रही हूँ। ओके, ऑथोराइज कैपिटल में 500 करोड़ लिख रही हूँ, बट पेड अप कैपिटल में हो सकता है 10 करोड़ से चालू करूँ। ओके, तो ये डिफरेंस है। ऑथोराइज कैपिटल जो है वो अथॉरिटी देता है अंडर द लॉ, अंडर द कंपनीज एक्ट, मुझे पूरा परमिशन दिया जाता है कि ये मेरा लिमिट रहेगा कैपिटल रखने का। ओके, तो यहाँ पे जो है, जो पर्टिकुलर कंडीशन आरबीआई ने क्या बोली है कि पेड अप कैपिटल मीन्स उन्होंने जमा किया हुआ कैपिटल। ओके, ऑथोराइज कैपिटल क्या है, सिर्फ परमिशन मिला है कि आप इतना कैपिटल ले सकते हो। ओके, बट पेड अप कैपिटल क्या होता है कि जो आपने जमा किया या फिर जमा कर लिए हो। ओके, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज अ पेड अप कैपिटल।
तो एज पर आरबीआई जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनका जो पेड अप कैपिटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 100 करोड़ का। ओके, बट अब जब आप ये 100 करोड़ जब जमा करते हो तो इसमें प्रमोटर्स का भी तो कंट्रीब्यूशन चाहिए ना, करेक्ट, एज इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, यू कैन सी द लिस्ट फर्स्ट, मैंने इसीलिए लिस्ट शेयर किया कि सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। तो पहला तो कंडीशन है जब स्टार्ट की जाएगी ये पर्टिकुलर स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसमें कम से कम 45%, 45% जो है वो जो लोग प्रमोटर है उन्होंने कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ओके, उन्होंने कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस पर्टिकुलर बैंक के अंदर, ठीक है। तो ये रहा 45%। ओके, तो 45% ऑफ 100 करोड़ कितना आएगा? कैन एनीबडी अनम्यूट? You can write here in chat box also. If you don't wanted to unmute, you can write in chat box. I can see the chat box also. See, if you listen me in this way, na, it becomes a means monotonous. Like I am talking with myself only. ओके, तो ये सवाल मैं आपके ऊपर ही छोड़ देती हूँ। आई विल नॉट गिव आंसर टू यू देन। 45% ऑफ 100 करोड़ जो है वो उनको रखना पड़ेगा, मीन्स हाईएस्ट। हाईएस्ट मीन्स वो कितना लेंगे मार्केट से ले सकते हैं, 55% वो मार्केट से उठा सकते हैं, बट प्रमोटर्स को 45% जमा करना कंपलसरी है। दूसरा एक आरबीआई का कंडीशन उन्होंने रखा हुआ है जब लाइसेंसिंग दिया है तब, कि ये कंपनी कमेंस होती है उस दिन से 12 साल के बाद, 12 साल कंप्लीशन के बाद, कमेंसमेंट व्हाट, जैसे टेक एग्जांपल आज की तारीख है आपकी 4 जून, करेक्ट। तो 4 जून 2021 को अगर कोई बैंक चालू हो रहा है तो ये डेट से 12 साल जिस दिन कंप्लीट हो गए, उसके बाद ये जो पर्टिकुलर स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनका इक्विटी वो कम कर सकते हैं अप टू 26%। ओके, अप टू 26%, धीरे धीरे वो कम कर सकते हैं, बट आफ्टर द 12 ईयर्स, मीन्स थ्रू आउट द 12 ईयर्स इन सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक को कितना कैपिटल रखना है प्रमोटर का, 45%, इट इज कंपल्सरी। ओके, देन नेक्स्ट विल सी द प्रूडेंशियल नॉर्म्स। ओके, प्रूडेंशियल नॉर्म्स मीन्स व्हाट, जो पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की, will be subject to prudential norms of regulations of RBI। आरबीआई की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बैंक के लिए लागू होती है, सेम दुनिया भर की सारी रूल्स एंड रेगुलेशन ये पर्टिकुलर स्मॉल फाइनेंस बैंक को अप्लीकेबल रहेगी, ठीक है। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको भी ये लागू रहते हैं, वैसे भी इनको भी लागू रहेंगे। फिर जैसे कि सारी बैंक्स के लिए, इवन नाउ डेज कोऑपरेटिव बैंक को भी ये लग गया है, ये लास्ट ईयर ही जून 2020 में our फाइनेंस मिनिस्टर शी हैज अनाउंस कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उनके लिए भी ये जो सीआरआर और एसएलआर है उनके लिए भी लागू होगा, और ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनको लिए भी लागू होगा। ओके, तो ये स्पेसिफिकली कैश रिजर्व रेशियो या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द आरबीआई पॉइंट ऑफ व्यू। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है, ये कैश रिजर्व रेशियो ये जो भी बैंक इस पर्टिकुलर आरबीआई के अंदर गवर्निंग स्ट्रक्चर में काम करती है, उनको उतना कैश जो है ना आरबीआई के साथ ये रेशियो मेंटेन करना होता है। ओके, कैश रिजर्व रेशियो वो उनको कंपलसरी मेंटेन करना है। अगर वो मेंटेन नहीं करते हैं तो व्हाट विल हैपन, उनकी उतनी लेंडिंग कैपेसिटी और वो लेस होगी। तो सीआरआर मेंटेन करना बहुत जरूरी है किसी भी बैंक के लिए। तो वैसे ही सेम ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनके लिए भी ये कंपलसरी रहेगा।
फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी सेम चीज है, बट ये क्या है ना, ये आरबीआई के साथ मेंटेन नहीं होता, ये बैंक के साथ ही मीन्स इन्हीं के साथ रहेगा। और यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या है, आप इन्वेस्टमेंट रख सकते हो या फिर आपके पास गोल्ड है वो फॉर्म में भी आप रख सकते हो। सेम इज कैश, कैश में भी वही है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के साथ रखा जाता है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है विद इन अ ब्रांच, विद इन अ दैट बैंक यू हैव टू मेंटेन। And here I just wanted to clear as we are talking about the finance industry, so here I like to tell you, ये जो कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर जो रखे गए हैं आरबीआई के थ्रू, ये स्पेसिफिकली इसलिए रखे गए क्योंकि आरबीआई फाउंड दैट इलिक्विड सिचुएशन आता है बैंकिंग इंडस्ट्रीज में कई बार। तो उसमें क्या होता है, एक बैंक दूसरे बैंक से बोरो करता है और ऑलरेडी इससे पहले पूरा ग्लोब सफर थ्रू द सबप्राइम, वन फ्रॉड वाज देयर जो यूएस से आया था, सबप्राइम वाज देयर। तो उसमें क्या हुआ था, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से हिल गई थी, बट समहाउ इंडिया नॉट दैट मच गॉट अफेक्टेड। तो आरबीआई ने उस वक्त भी ये प्रूव हुआ कि जो कैश रिजर्व रेशियो और जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो मेंटेन करवाया जाता है हर बैंक के थ्रू, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें क्या होगा कि इन्वेस्टर्स आर गेटिंग प्रोटेक्टेड, और इसीलिए जो है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी ये कंपलसरी हो गया, क्योंकि इसमें रखने वाला पैसे तो एकदम छोटा इंसान है, एक छोटा सा फार्मर है, एक छोटा सा बिजनेसमैन है, एक छोटा सा ठेले वाला है। अगर कल को ये स्मॉल फाइनेंस बैंक कहेंगे हम लोग दिवाला हो गए, तो जो इंडिया का छोटा से छोटा गरीब इंसान है ये भी दिवाला हो जाएगा। ओके, तो दैट इज द रीजन, तो आरबीआई ने ये इनके ऊपर नॉर्म थोपा हुआ है कि दे शुड मेंटेन बोथ द रेशियोज। ओके, एंड दैट इज वन रेशियो, वन रीजन कि इसीलिए ये बैंक को भी अप्लाई किया गया है। फिर भी इंडिया में आप देखोगे तो कई सारे बैंक के फ्रॉड हुए हैं, हो रहे हैं। ओके, now the next level of our small finance bank is what they need to required to extend their services 75%। में जो भी वो lending करेंगे, जो भी वो services देंगे, वो किसको देंगे, वो ज्यादा करके प्रायोरिटी सेक्टर्स में लेंडिंग देंगे। ओके, उनका ये कंपलसरी नॉर्म रहेगा कि वो प्रायोरिटी सेक्टर में 75% दे, जबकि दूसरे जो बैंकिंग सेक्टर है उनके लिए जो है वो 50% ही है, बट इनके लिए वो 75% रखा गया है, क्योंकि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि ये प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग दे, जो प्रायोरिटीज है उसको दे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मीन्स व्हाट, तुम्हारा हाउसिंग लोन आ गया, एजुकेशन लोन आ गया। ओके, ये सारे टाइप के लोन जो प्रायोरिटीज में दिए जाते हैं, जैसे फार्म लोन्स आ गया। ओके, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर्स में आते हैं। तो जब कोई स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस जब देगा लेंडिंग, तो उनका मैक्सिमम पोर्शन ऑफ देयर लेंडिंग शुड बी इन दिस प्रायोरिटी सेक्टर। ओके, दूसरा है क्या, एटलीस्ट 50% ऑफ इट लोन पोर्टफोलियो शुड बी कंस्टिट्यूटेड लोन्स एंड एडवांसेस अप टू 25 लाख। मीन जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा उसका 50% ऑफ पोर्टफोलियो में जो भी उनका पैसा है उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में से क्या होगा, 50% ऑफ अ लोन शुड बी अप टू 25 लाख के मेजोरिटी के हो। ओके, जैसे कि आप देखते हो होम लोन, एजुकेशन लोन है, उनका भी लिमिट क्या है, मैक्सिमम इज 25 लाख है। ओके, जैसे होम लोन में भी दो प्रकार के होते हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अप्लाइड फॉर अ होम लोन। होम लोन में भी होता है एक लॉन्ग टर्म होम लोन होता है, मींस एक लॉन्ग टर्म लोन दिया जाता है जो होम लोन के नाम पे दिया जाता है, और एक प्योर होता है होम लोन। ओके, सो हियर इंटरेस्ट रेट इज डिफरेंट। ओके, इंटरेस्ट रेट इज डिफरेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड होम लोन। ओके, दोनों है ही सेम, बट लोन का जो परसेंटेज है इसमें डिफरेंस आता है। ओके, लॉन्ग टर्म लोन ही होता है होम लोन भी, बट इसमें परसेंटेज का डिफरेंस अलग है, ट्रीटमेंट अलग है, इसीलिए उन्होंने बोला हुआ है स्पेसिफिकली यहाँ पे आरबीआई ने मेंशन किया है कि जो होम लोन, एजुकेशन लोन, जिनका जो मैक्सिमम लिमिट क्या होगा, 25 लाख का सीलिंग होगा। ओके, दूसरा एक है कि आरबीआई हैज गिवन अ प्रिंसिपल अप्रूवल टू फॉलोइंग 10 एप्लीकेशंस, जो मैंने लास्ट टाइम बोला हुआ है, अभी आप लोग को जो लिस्ट दिखाई उसमें कि उन्होंने 10 बैंकों को अप्रूवल दिया गया है 2014 में,
और ये जो अप्रूवल दिया जाता है ना, जब आपको कोई एप्लीकेशन अप्रूव हो गया तो इमीडिएट तो वो बैंक नहीं स्टार्ट होगा, करेक्ट। तो ये अप्रूवल जो है वो कितने महीने तक वैलिड रहेगा, 15 मंथ, मीन 15 महीने के अंदर ये जो पर्टिकुलर अप्लीकेंट थे, इनको अप्रूवल मिलने के बाद दे हैव टू शो ऑल द देयर पर्टिकुलर परक्विजिट, कि ये बैंक स्टार्ट करने के लिए उनके असेट्स, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उनका जैसे कि 100 करोड़ का शेयर कैपिटल उन्होंने फॉर्म करना चाहिए, 45% जो है वो प्रमोटर के थ्रू ही होना चाहिए। ये सारे कंडीशंस उनको कंप्लीट करने होते 15 महीने के अंदर। अगर 15 महीने में अगर ये नहीं कर पाए तो जो उनका जो दिया हुआ अप्रूवल था वो ऑटोमेटिक इनवैलिड हो जाएगा, उनको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो आरबीआई जब भी कोई अप्रूवल देता है तो विथ लिमिट देता है। ओके, तो यहाँ पे आरबीआई ने 10 जो बैंक को अप्रूवल दिया था उसका जो पीरियड था वो 15 महीने का था। वैसे ही पेमेंट्स बैंक्स के लिए भी आरबीआई परमिशन देता है। तो जो पेमेंट बैंक्स है इंडिया में, वो जब अप्रूव हुए थे तो वो अप्रूवल 18 मंथ्स तक का रहता है। ओके, 18 मंथ्स के अंदर ये जो बैंक्स जिनको पेमेंट बैंक के बैंक के अंदर परमिशन दिया गया काम करने के लिए, they have to submit all the detail, all the their perquisite, में जो भी उन्होंने सेटअप खड़ा किया वो सब कुछ जमा करना होता है 18 महीनों के अंदर। अदरवाइज क्या होगा, उन्होंने जो पर्टिकुलर लिया हुआ परमिशन है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, उनको फिर से फ्रेश एप्लीकेशन आरबीआई को करना पड़ेगा। देन दूसरा एक है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द डेवलपमेंट। इसमें जो है ये पर्टिकुलर जो हमारी स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हम जब आगे देखने वाले वो चीज ये है कि स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस जो है इन्होंने ज्यादा करके एसएचजीज को लेंड करना जरूरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था, एसएचजीज क्या है, स्मॉल a group of people who are coming together with the some objective of something to produce. Okay, उनका कुछ ना कुछ आउटपुट होता है। तो यहाँ पे मैंने आरबीआई का सर्कुलर रखा हुआ, इट वाज वेरी ह्यूज, बहुत सारे हैं, करीब करीब 32 पॉइंट्स है। तो मैंने यहाँ पे सर्कुलर रखा है, यू गो एंड रीड बाबा दैट। there are the many things that particular small finance bank supposed to do, उसमें सभी आ गया। जैसे आपका मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस, स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस को लोन देना है तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए आरबीआई ने। सेम वे जब हम बात करते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की, तो उनके लिए भी लोन्स देने के लिए अगेन आरबीआई ने बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए, इवन केवाईसी का भी इन्होंने बताया हुआ है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उन्होंने केवाईसी रन करना चाहिए। एक होता है बैंकिंग सेक्टर में ओडसमन, वो भी फैसिलिटी इनके लिए भी रहेगी। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस है ये रन करेगा लाइक बैंक ओनली। ओके, ये आप समझ लो अच्छे से, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये रन करेगा लाइक अ बैंक ओनली, बट इनका जो टारगेट है, जैसे मैंने पहले स्लाइड पे दिखाया था, इनका टारगेट ये लोग हैं, इनका टारगेट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, माइक्रो फाइनेंस एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ओके, और इनके अलावा जितने भी छोटे बड़े बिजनेस वाले हैं इन सबके लिए लोन देना। ओके, ये इनका टारगेट रहेगा। अगर आप देखोगे प्राइवेट बैंक, नेशनलाइज बैंक, इनका ये टारगेट नहीं है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा, बताया आप लोग को कि ये 75% ऑफ लेंडिंग शुड बी गिवन टू दीज पीपल ओनली। ओके, जबकि ये दूसरे जो भी बैंक्स है, नेशनलाइज बैंक, इवन एनबीएफसी जो है, इन सब के लिए ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया लागू नहीं है। बट अगर एनबीएफसी, अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर इस पर्टिकुलर इसमें नॉर्म में अगर आता है, उनको अगर अप्रूवल मिलता है तो उनको ये फॉलो करना पड़ेगा। इनका प्रॉपर वैसे ही ऑडिट और गवर्निंग होगा जैसे आरबीआई दूसरे बैंक्स का करता है। इसीलिए उन्होंने ये ऐसे कैश रिजर्व रेशियो और जो हमारा स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो है, दोनों को उनके ऊपर क्या रखे, रिस्ट्रिक्शंस रखे हुए हैं। ओके, देन दूसरा एक है कि पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक जो है ये जो पेमेंट बैंक है इनका रोल जो है वो टोटली अलग है। जो हमने अभी तक का स्मॉल बैंक्स में देखा, क्या देखा हमने स्मॉल बैंक्स में, कि दे कैन प्रोवाइड अ
बेसिक एक्टिविटीज, ओके, दे कैन प्रोवाइड अ बेसिक एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में क्या देखा हमने कि वो कासा ले सकते हैं, रिकरिंग दे सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट दे सकते हैं, एंड दे कैन इवन लेंड। लेंड में भी हमने देखा वो इतने लोगों को लेंड दे सकते हैं। बट पेमेंट बैंक्स इसके एकदम अपोजिट है। डेफिनेटली इनको जो पर्टिकुलर परमिशन देने वाला है वो आरबीआई है, ओके। बट इनका जो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो रहेगा वो क्या रहेगा, दे कैनॉट टेक अ particular money, sorry, they can take deposit but they cannot lend, okay। वो डिपॉजिट ले सकते हैं अलग अलग लोगों से, ओके। दे कैन टेक लोन्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पीपल। सी मेरा ना लैपटॉप का और मोबाइल का दोनों का बैटरी खत्म हो रहा है, मेरे एरिया में लाइट नहीं, हो सकता है किसी भी वक्त मेरा बंद हो जाए, हाँ, लैपटॉप। सो प्लीज, हम, क्योंकि बहुत ही वो ब्लिंक कर रहा है। पेमेंट बैंक जो है वो क्या है कि दे कैनॉट मीन्स दे कैनॉट गिव अ लोन, मीन्स वो लोन नहीं दे सकते, ओके। वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ वो हमारा वो सिर्फ पैसे ले सकते हैं, ओके। दे कैन टेक अ मनी, और पैसे लेने के लिए वो सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, ओके, और वो डिपॉजिट उनसे ले सकते हैं, ओके। और इवन दे कैन गिव अ फिक्स डिपॉजिट, ओके, वो फिक्स डिपॉजिट भी रख सकते हैं लोगों का। बट यहाँ पे क्या है ना, रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमने देखा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस रखे हुए हैं। स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस में जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तब किसी भी वक्त मैंने बोला नहीं कि उनको रिस्ट्रिक्शंस है, ओके। बट इस पर्टिकुलर पेमेंट बैंक के लिए रिस्ट्रिक्शंस है। जो डिपॉजिट हो गए वो कहाँ तक हो गए, सिर्फ 1 लाख तक हो गए, ओके। इवन इनके लिए एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि हमारी जो पर्टिकुलर स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस है वो क्या है, टू रीच एवरी पर्सन, ये हिसाब से बोला गया है, करेक्ट। एंड यहाँ पे इवन उनके लिए यहाँ पे ये भी बोला गया कि देयर इज नो एरिया ऑफ ऑपरेशन, करेक्ट। बट पेमेंट बैंक के लिए कुछ कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, उसके हिसाब से उन्होंने काम करना जरूरी है, ओके। तो पेमेंट बैंक्स का ये रोल है, ओके। एंड वी कैन सी दैट